Can you see my screen now? Yes, sir. Okay, so then we should start. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum to everyone, and welcome to this lecture. I think this should be 24, right? Okay. Anyway, but so 22 written here. And in last lecture, we covered hierarchical clustering. You remember? We discussed the scenarios where this hierarchical clustering is important. And we have two approaches to implement this. One is top-down, other is bottom-up. It's possible that you can have one big cluster and then you can divide it or split it into small clusters, or you can have small clusters, and then you can, considering the feature similarity, then you can start merging and you will end up with the one big cluster. We discussed the algorithm for that, how it works, that all we discussed in last lecture. Today our focus is on multiple points. First is outlier analysis. When you talk about clustering, it doesn't matter it's a cluster or hierarchical clustering, or it's a hard clustering, soft clustering, whatever, you will face the issue of outliers. Okay, so what is outlier? How can we determine this is outlier or this is not outlier? How can we ignore it? That's all we will discuss. Then we'll move to our next learning. So far we have discussed unsupervised and supervised. Today we will extend this to semi-supervised. Okay. We'll discuss this, how data looks like for semi-supervised and how can we apply this approach. Then we'll discuss briefly multi-view learning. That's also one type of learning. And with this, it's very strongly connected imbalanced data. I don't know how many of you know that. What's the difference between balanced and imbalanced data, and how it can be dangerous for your classification or prediction? How can it play a negative role in your classification? So that's all that's in our agenda for today's lecture. Okay, and we'll give you a roadmap for the next lectures. Okay, so let's start from the outlier analysis. What is outlier? Outlier is normally, this is also part of your data set. Okay, outlier is not something which is completely different. It is the part of your data set, but it doesn't actually comply the behavior of your data set. Okay, so it doesn't have similar features that the rest of the data set has. It's completely, it can have different type of features, and based on that it doesn't come closer, or we cannot plot it in the boundary of the cluster. That's why it's go far away from the cluster, and the more far away it will go, we will accept that its features are more different. Okay, such data which are grossly different from or inconsistent with the remaining data are called outliers. This is the definition. So if we consider any distribution of data set and we plot it, so normally you will see here, let me pick the pen. Yeah, so if you see here, this is your majority of the data points. It means they have at least most of the features, they are closer. Okay, that's why they plot together. But there are a few points which are quite far from this cluster, far from this boundary, and these can be outlier. Again, I'm saying this can be, it's not 100% outlier.
we'll see sometime they can be explained semantically, and we can prove these are not outliers. Okay, but at first glance, by looking at this picture, we will see that these 3 points, they are quite far from the cluster or from the dense of other data points. So we can think about that they could be outlier. Okay, समझ आ रही है चीज? Yes, sir. Okay, so but definitely if we can prove that these are outliers, then there's no point to keep these in our classification. They can definitely damage your accuracy. There's no point that we should process them. Okay, तो ये तो आपको पता चल गया कि outlier किसको कहते हैं and what's the definition. Now, what can be the sources of outliers? This is also very important to know. One is correct data, other is bad data. As I said, कि मैंने word use किया था, they can be or it can be outlier, but not guarantee. क्यों? आपका ठीक डेटा भी आउटलायर, आपको आउटलायर की तरह नजर आ सकता है. I would not say outlier word for here. It can be similar to that. So that's why if your even abnormal value that you think, if it is semantically can be explained or described, then we can say this is not outlier. But if there's no explanation for that particular type of feature, then we can say this outlier. I can give you example of both, correct and bad. Correct one is, for example, if we take the example of salary for all employees in a company, okay, I'm not including the class 4 employees, something like, but all software developers, for example, or programmers. If I'm considering this all salaries, and if I take CEO salary in this case as well, so definitely the CEO salary maybe looks like outlier for me, right? The CEO ki salary is almost 3-fold or 4-fold as compared to other employees. Okay, so when you will plot the all salaries distribution, you might see that CEO salary is far away from the cluster. But can I say this is outlier? No. Right? Do you agree with me? Yes, sir. This is not outlier. This is the actual data. Okay. तो इस केस में हम इसको कहेंगे this is correct data variability. Bad होगा if person age is 999, which is impossible, particularly in this nowadays in this era, right? Nobody can have this long age, 999 years. This is confirmed bad data. This is outlier. तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमें sources को भी analyze करने की जरूरत होती है. Whenever you pick this abnormal values, you should reflect back to sources. What are the sources? What type of this data is? In some cases, we can say this can be outlier, like age. Nobody can have 999, right? But in salary, yes, salary may be दो किस्में. That's why I plotted this on the right side. If you see, this is one outlier and this is one outlier. I'm saying these are the actually potential candidate for outlier. Okay. And this is the age, and these are the salaries on the y-axis. Okay. तो कोई बताएगा which point is more potential or more inclined towards the outlier? I just plotted 2 circles. Okay. Sir, the person who's below 20 and has over 70,000 salary. Yeah. So this is confirmed outlier. A person which is under 20 age, like 10, 12 years, or maybe 50, I would say 12 years around, or 10 years. How come he or she can take, he or she can earn this much high salary? Now, this is semantically, you prove it, that this is outlier. But in age around 48, this is quite possible.
Any person in this age can be a CEO of a company or CTO for a company, okay? And he can earn this much money as salary. So that's why I just gave you both examples. It can be outlier or it can't be. We need to analyze. So outlier can, ये सबको समझ आ रहे हैं point के नहीं? Because only couple of people they Yes, just sir. yes. Outliers can dramatically affect analysis. ठीक है? For example, OLAP resulting. Data warehouse में जब आप OLAP apply करते हैं, तो these outlier can play a lot of role. मैं आपको कहता हूँ, मुझे आपका बॉस कहता है warehouse, you are basically the data warehouse report analyst, something like that, and he asks you, give me the average of all salaries. ठीक है? और अगर वहां पर इस तरह के आउटलायर हैं, तो they definitely can affect your average badly, or any standard deviation or anything analysis that you perform. So that's why it's written, they drastically or dramatically affect your reports, your results. It's very important to remove them, but it is not so easy because the identification is quite crucial. कभी कभी हम ऐसे उसको, अब CEO की सैलरी हम रिमूव नहीं कर सकते, but the first point we can remove easily. ये कैसे? This is only possible to analyze the outlier. Okay, हर एक को हम outlier कह नहीं सकते. एक है outlier candidate, एक है outlier we prove that this is outlier. Excuse me, sir. Yes. सर, अगर हम CEO की सैलरी इंक्लूड करते हैं तो क्या वो इफेक्ट नहीं करेगी उसकी एक्यूरेसी पे? इट इज स्टिल एन आउटलायर ना? यस करेगी, बिल्कुल करेगी, बट ये एवरेज, करेक्ट एवरेज है ना, कर रही है तो ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि इट शुड नॉट इफेक्ट. लेकिन अगर ये सैलरी होती ही ना CEO की, जब पहले केस में है अंडर 20 है, तो उस केस में तो आपकी एवरेज रॉन्ग आई ना. यस सर. वो जो CEO की सैलरी है, दैट इज अ करेक्ट सैलरी. सो इफ इट इज अफेक्टिंग योर एवरेज, सो व्हाट, इट शुड इफेक्ट. आउटलायर्स को नहीं कहते. आउटलायर ये है कि आपका डाटा कोई एबनॉर्मल हो चुका है, और वो इस वजह से हुआ है कि वो is kind of some error injected in this. That's the main thing. Okay, sir. Why are outliers important? Knowledge generated, जिससे मैंने बताया, why these are important? Knowledge generated from databases can be divided into 3 categories: incorrect, useless, news or surprising, interesting. अब ये जो पहला केस था, 10 years old CTO detecting such outlier helps clean data. ये incorrect data है, इसको clean करना ही फायदेमंद है, and that is necessary to remove this type of bugs or data, because you make sure, it's 100% sure this is the incorrect data. Useless or our CEO on 180K, ये data looks like abnormal, but this is not abnormal, we will not delete it. New, surprising, interesting. Sometime कोई हमें एक नया डाटा इस तरह भी मिले कि बहुत सारे लोगों की यहाँ पर क्लस्टर बने और जिनकी सैलरी अक्सर यहाँ पर इस रेंज में आ रही है. हमें लगेगा कि यार इतनी सैलरी तो नहीं हो सकती, दिस इज अ वेरी लो सैलरी, बट एक्चुअली इट कैन बी, जब आपने एनालाइज किया कि वो सारे इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स थे जिनको कंपनी लो पे करती है हमेशा. So can we say this is outlier? No. This is actual data. वो basically they are students and they have started the internship. Now they are part of the organization. They are getting salary, but comparatively very low salary. So this is not the outlier again. Typical applications of outlier analysis is error और क्रेडिट कार्ड और टेलीकॉम फ्रॉड डिटेक्शंस. लेट्स सपोज ये है कि किसी को आपने डाटा कलेक्ट किया हुआ है जो हाई स्पीड व्हीकल्स का टिकट का डेटा है, फाइन जो पुलिस करती है हाई स्पीड उसको व्हीकल्स को, एंड यू गॉट सडनली अ टिकट वेयर दे गेट द फाइन ऑन 500 किलोमीटर पर आवर. अब नाउ इट्स अनबिलीवेबल. डेफिनेटली दिस इज द आउटलायर, because this is not the speed of any vehicle. Actually, even it's not the range of this speed.
So there's no need to confirm this. This is a confirmed outlier. Okay, or any person got the phone bill into 118 trillion or million. Again, this is not possible. तो ऐसे भी कुछ आउटलायर्स होते हैं जिनको कंफर्म करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज वो उस रेंज में हो ही नहीं सकते, नो पॉसिबल. बट अगर आपको लगे कि डाटा सेट जब आपने प्लॉट किया तो देयर वर सम पॉइंट्स के जो लुक्स लाइक अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्लस्टर, बट वी हैव टू एनालाइज किनकी के. हाँ, कोई वैल्यू ऐसी है जो कंप्लीटली एबनॉर्मल, आउट ऑफ द रेंज, उसके लिए हमें कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है. Market segmentation with support of niche detection. Okay, outliers in business data warehouse can lead to niche approach. Yes, ये जो हमने कहा ना कि एनालिसिस करना इसका, this is not so easy. अभी हमने सिर्फ few data points देखे हैं, and human can understand these few data points and we say okay, this is abnormal and this is not. But when you have data points in millions and millions, particularly in warehouse, when you have vast or variety of dimensions of data, many dimensions, maybe 10 dimensions, 15 dimensions, then it's not easy that you can detect this outlier through humans or manually. No, it's not possible. Okay. अच्छा, कभी कभी ये भी है, it's a niche detection, mean out of the way. लग रहा था आपको, जिस तरह मैंने आपको सीईओ की एग्जांपल दी कि it is outlier, but actually it's not. Let's take another example. There's a one insurance company जो कि व्हीकल्स की इंश्योरेंस करती है. आपको पता है ना, कार की भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं कंपनीज. They do provide the car insurance. Okay. अब वो कंपनी अपना डाटा एनालाइज करती है. हमेशा यहाँ भी होगा ऐसे. I never actually registered for the insurance here, but I was registered overseas. वहां पर आपके हर साल आपका जो इंश्योरेंस का जो रेट है वो डिसाइड करता है हाउ डिड यू ड्राइव इन द लास्ट ईयर. आपने कितने एक्सीडेंट किए, कितने आपको, क्योंकि उनके साथ पुलिस का डेटा भी उनको एक्सेस में होता है. they have a complete model, machine learning model. They analyze how many times you got the ticket on overspeed, how many times you did the wrong parking and you got the parking ticket, how many times you got the accident. तो आपका वो सारा एनालिसिस करके every portfolio, every profile, they basically assign, okay, this is your next year premium to pay for this insurance. Okay, they do this on every individual customer. बात समझ आ रही है चीज? जी सर, बिल्कुल. और ये यहाँ पर पाकिस्तान में आप अगर मास्टर का प्रोजेक्ट करना चाहें, इट कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, टू बी ऑनेस्ट. मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है ये. अगर आप हमें कोई कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी डाटा दे, हम उसे कहें कि यार आप जो एक ही सब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है कि भाई अगले साल 25,000 ही हर एक को देना है या 30,000 देना है, why don't you personalize based on the person, a person who is a very safe driver, why we should take 50,000 from him? आप इससे एग्री करते हैं? Sir, yes, sir, yes. we don't ticket on wrong parking. ठीक है, यहाँ पर पार्किंग का तो खैर कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ तो येलो लाइन पे पार्क करके जाते हैं लोग, बट एटलीस्ट एक्सीडेंट्स का तो कोई रिकॉर्ड हो सकता है ना पुलिस के पास. Yes sir, बिल्कुल. ठीक है, तो उसी की बेस पे पर्सनलाइजेशन कर दे हम, तो आई थिंक कंपनी विल बी वेरी, शुड बी वेरी हैप्पी, और लोग, कंपनी से ज्यादा लोग हैप्पी होंगे. अब मैं, लेट्स सपोज आई एम अ वेरी सेफ ड्राइवर, ठीक है, आई डोंट हैव एनी बैड हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंट्स, तो मैं चाहूंगा कि मुझे उस पे कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे. राइट. आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब भी आपका एक्सीडेंट होता है ना, न्यूजीलैंड में भी है वैसे, ये आपके ड्राइविंग पॉइंट्स होते हैं, आपके पॉइंट्स कटते जाते हैं, और अगर आपने साल में 5 एक्सीडेंट कर लिए ना, तो आप, यू कैन नॉट ड्राइव एनी मोर इन दिस ईयर नाउ. और वो जो पॉइंट्स हैं वो ऑनलाइन मैनेज होते हैं, पुलिस के पास उसकी एक्सेस होती है. इन फ्यूचर अगर पुलिस ने आपको चेक कर लिया और आपके पास पॉइंट ना हुए ड्राइव करने के, तो यू विल हैव अ वेरी हैवी फाइन and your vehicle will be locked. सर लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता ना एक्सीडेंट्स का पाकिस्तान में. मैं वही कह रहा हूँ, एक्सीडेंट का रिकॉर्ड तो होना चाहिए.
कुछ जगह पे हम पाकिस्तान में, हाँ सर 500,000 दे के निकलवा लेते हैं तो ये दिस इज एक्चुअली, देखिए यही तो लूप होल है जिसकी वजह से फिर टेक्नोलॉजी भी नहीं आ सकती ना। अब अगर ये एक्सीडेंट्स को मॉनिटर करें, उनका प्रॉपर इंदराज हो, दे शुड बी एंटर्ड। और यार ये जो इस्लामाबाद में कैमरे लगे, मुझे नहीं पता ये चलते हैं कि नहीं चलते, किसी को कोई टिकट नहीं मिलता, पीपल आर गोइंग ऑन 100 एंड नॉर्मल स्ट्रीट्स, हाउ इज पॉसिबल? ठीक है, एटलीस्ट ये कश्मीर हाईवे पे तो यार आप कैमरे लगाएं, मोटरवे पे आप कैमरे पता नहीं लगे हुए उनमें है कि नहीं, डब्बे तो लगे हुए एटलीस्ट, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ये जरूरी नहीं है कि लोगों को पनिश करना, दिस इज नॉट द इंटेंशन, टू हैव अ सेफ ड्राइव इन्वायरमेंट, ये इंटेंशन है। प्लस इस डाटा से हम बहुत कुछ और निकाल सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के लिए निकाल सकते हैं, पुलिस गवर्नमेंट के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन हम मुसीबत ये है कि वहां आके हम बिल्कुल ही वी आर हेल्पलेस कि जब डाटा ही हमारे यहाँ नहीं मिल रहा। और फिर प्रॉब्लम ये है कि वी हैव अ साइड रूट फॉर एवरीथिंग, हर एक के लिए तो हमने बाईपास का तरीकाकार निकाला हुआ है, तो उससे कुछ भी नहीं हो सकता। दिस इज द प्रॉब्लम, अदरवाइज दीज थिंग्स आर वेरी नाउ ऑन फिंगर टिप्स। मैंने आपको बताया कि वहां पर हर इंश्योरेंस, हर पर्सन को जो सालाना एनुअल प्रीमियम मिलता है टू पे, दिस इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और ये एक वजह है, ये बात नहीं है कि वहां पर लोग वो नहीं, यही वजह है कि वहां लोग, हमारे लोग भी जाके वहां पर बड़ी केयरफुल ड्राइव करते हैं। एक तो बड़े हैवी फाइन है, इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम नहीं करने देती, ठीक है, तो टिकट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, डेफिनेटली यू विल फॉलो द रूल। और सबसे बढ़ के ऑन द टॉप ऑफ दैट देयर इज नो शॉर्टकट्स। कैमरे ने, क्योंकि एविडेंस है, कैमरे ने पिक्चर ले ली, कोई उसको माफ नहीं करवा सकता, यू हैव टू पे, ओके, इट विल स्टे ऑन योर लाइसेंस until unless you pay it and clear it। तो अभी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मेरे माइंड में अभी भी आया है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे पास एक्सीडेंट का भी डाटा नहीं है एंड वी डोंट हैव डाटा फॉर द टिकट्स, सो देन वी आर हेल्पलेस। कैसे हम जनरेट करें डाटा? ओके जी, okay, so this one is example, I was just explaining the niche. Farmer is an insurance company in Germany, okay, that insured the vehicles. अब उन्होंने एनालाइज किया डाटा, so they have divided all the drivers or customers into 3 categories with respect to accident: low risk, medium risk, high risk, ठीक है। और इसी डिवीजन के लिहाज से वो प्रीमियम असाइन करते हैं। If your profile is on high risk, you have to pay lot as insurance, ठीक। तो they have plotted all the data and you ये क्वेश्चन आपको? यस सर, जिस तरह आप पहले कह रहे थे ना कि हम उस तरह हेल्थ इंश्योरेंस में भी कर सकते हैं ना, कि कौन सा शख्स पहले कितना बीमार है उस हिसाब से उसको भी कैटेगराइज कर सकते हैं। उसमें हेल्थ में देखें, ये कर सकते हैं हम। हेल्थ में थोड़ा सा फैक्टर आ जाता है कि बीमार होना और ना होना आपके बस में नहीं है। नहीं सर, जो कुछ होती है ना ऐसी डिजीजेस जो बंदे के साथ ही रहती है। हाँ ये है एग्जैक्टली, बीइंग ए मुस्लिम हमारा थोड़ा सा पे वो है, बट गोरे तो बिल्कुल करते हैं इसको, डेफिनेटली। आप वहाँ इंश्योरेंस लें, अगर आप अपने पेरेंट्स की इंश्योरेंस लें और वो अबव 60-70 हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू पे हाई एज कम्पेयर टू यंग, क्योंकि उसमें उनके दे आर ऑन रिस्क। और अगर उनकी हिस्ट्री जी हेल्थ रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, यस, हेल्थ रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। और अगर उनकी हिस्ट्री में कभी उनको सर्जरी हुई है, उनका कोई डायबिटीज हुआ है कुछ, तो इससे सारा वो इंश्योरेंस का पूरा, एक्चुअली वहाँ यूँ नहीं है कि आपने कॉल किया और आपको इंश्योरेंस मिल गई। दे फर्स्ट कलेक्ट ऑल द रिक्वायरमेंट्स, गैदर द डेटा एंड देन दे विल कम अप, ओके दिस इज योर प्रीमियम, अगर आपने हमसे लेना चाहते हैं। तो हर जगह गाड़ियों की इंश्योरेंस भी इसी तरह से है, मकान की इंश्योरेंस ऐसी है, all the houses are insured there। Okay, so now here when they analyze this, normally जो स्पोर्ट कार होती हैं वो ऑन हाई रिस्क होती हैं, उसमें स्पीड बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, दे आर रेसिंग कार्स। When they analyze data, they saw there are a couple of plots which are coming on low risk and they are sport cars drivers. How this happening? तो सिस्टम तो इसको आउटलायर पकड़ेगा एज ए कैंडिडेट,
Agree or not? जी सर बिल्कुल। तो but when they analyzed, उनको पता चला कि यार ये बंदा, this is his third or fourth car and he has destroyed 3 cars already in the accident, and now he is a very careful driver, though he still use the sport cars, but he is a very careful driver now. Okay, or he is a married, he has 2-3 kids and he has a family, so definitely he also travels with kids, so now he doesn't do much speeding as before. So after knowing this information, will you say this is outlier? No sir. No, because this is a semantically explanation behind this. Okay, ये सब क्लास को समझ आ रहा है? Everybody is getting what I'm saying? Yes sir. Yes sir. Okay. तो नॉर्मली मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं इस तरह से कि हर एक को हमने पिक ऐसे नहीं करना कि बस डिस्टेंस है तो इसको जस्ट से आउटलायर एंड डिलीट इट. नो, दिस इज नॉट द केस. So detecting outliers seems easy. Just visualize the data and here they are. जैसे हमने इसको विजुलाइज किया और कहा कि ये आउटलायर है, इसको देखें जी, ठीक है, ये हो सकता है आउटलायर, इसको जरा देख. बट स्मॉल डेटा के लिए पॉसिबल है. हाउ कैन वी डू दिस फॉर द लॉन्ग डेटा और द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा? We cannot do this through visualization. What about when dealing with large data sets and multiple dimensions, particularly in data warehouse? वहां तो 10 से 15 डायमेंशन आराम से होती हैं आपके डाटा की. Then ये 2 डायमेंशन डेटा है, याद है आपको, क्योंकि इसकी x एक्सिस है, कैन यू सी, एंड y एक्सिस, ओनली 2 डायमेंशन. अगर मैं इसको 3 डायमेंशन पे ले जाऊं तो ये क्यूब बन जाएगा. Will you all agree? This will be in the cube form. Yes sir. और अगर सर एक और क्वेश्चन था जी, और सर ये हमारे पास एक किस्म का एक तो लेबल्ड डाटा होगा ना? जी जी. तो हम अनलेबल्ड डाटा की सूरत नहीं में नहीं, ये देखें, कैसे पता ये चलेगा? नहीं, ये तो नहीं मैंने कहा कि ये लेबल होगा. लेबल और लेबल आउटलायर का देखें, दोनों से कोई ताल्लुक नहीं. नो, ठीक ये है जरूरी है कि ये लेबल हो. आपने तो इसमें तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट किया है बस. दैट्स इट. नथिंग इज रिक्वायर्ड फॉर लेबल और नॉन लेबल फॉर दिस. ओके सर. Okay, so I was telling, if this is a 4 dimension, then it will be a list of cubes. If it is a 5 dimension, it will be a matrix of cube, and if it's a 6 dimension, it will be cube of cubes. Okay, how possible कि cube of cube में से आप outlier find करें visually? Never. Okay, but ये आपकी like even car types, ये dimension हो सकती है इंश्योरेंस में. अगर warehouse में डाटा पड़ा है, कार की टाइप्स हैं, एक्सीडेंट के रेट्स हैं, एज है, मैरिटल स्टेटस है, चिल्ड्रन है, फाइनेंशियल स्टेटस है, many 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 more. So if you have all these dimensions, so then there's no point that visually you can identify the outlier जब तक आपके पास कोई प्रॉपर मैकेनिज्म ना हो. ओके, तो फिर क्या मैकेनिज्म है? सबसे इजी मैकेनिज्म हम पढ़ के आ चुके हैं. इस पे सिंपल क्लस्टरिंग अप्रोच अप्लाई कर दें. ओके, सिंपल क्लस्टरिंग. और जो पॉइंट्स क्लस्टर से बाहर आए उनको पोटेंशियल कैंडिडेट कह दें. डिसाइड नहीं करना, कैंडिडेट. एंड देन यू कैन मे बी इवन मैन्युअली यू कैन एनालाइज दोज पॉइंट्स कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों इस डिस्टेंस पे है, why is coming outside the boundary of the cluster. That's possible, but at first glance in the whole data it's not possible. That's why I said here outlier as points which do not lie in the cluster, outlier as point which behave very differently from norm. आपके पास कोई, जिस तरह मैंने आपको बताया, सैलरीज का क्लस्टर्स है, कुछ वैल्यू ऐसी हैं 1 या 2 जो बिल्कुल इस क्लस्टर से बाहर जा रही हैं. अब अगर वो सीईओ की सैलरी है तो डेफिनेटली वेरी गुड. In this case, we will see other dimension like age. 10 साल का बच्चा कोई 180 नहीं ले सकता. Okay, so then this is an outlier. So in this case, we have to then analyze the semantics. There are some other methods as well, like statistical approach, distance-based approach, deviation-based approach. These are also some approaches based on which we can say this can be a potential outlier or not outlier.
फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिकल अप्रोच में अगर आप अपने डाटा को प्लॉट करें और वो इस शेप में, और डेफिनेटली डाटा ज़्यादा इसी शेप में आते हैं, बेल शेप बनती है उनकी, तो आप इसके ऊपर 3 सिग्मा रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो वी कैन से कि यार इसके बेल कर्व का जो सेंटर है इससे लेफ्ट भी 3 सिग्मा और राइट भी 3 सिग्मा, उससे ऑनवर्ड जो भी डाटा है उसको आउटलायर डिक्लेयर कर दो, पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर आउटलायर। इज इट क्लियर और नॉट? जी सर। यस सर। ठीक है, तो दिस कैन बी ए क्विक, यू कैन ना स्कैमिंग ऑफ डाटा। ओके, कि हम कैसे पता करें कौन से, तो ये बड़ा अच्छा, आई लाइक दिस अप्रोच। यस सर, ये 3 सिग्मा रोल जो है सर, ये इस जो ये मतलब आपने बताया कि नॉर्मल मतलब बेल जहाँ पर एंड हो रही है वहां से आगे, और जहाँ पर तो इस चीज को 3 सिग्मा रोल कहते हैं, मतलब इस मैकेनिज्म को। यस, इस मैकेनिज्म, बिकॉज अगर आपने, मैंने इसको क्योंकि 3 एक्युमुलेशंस कही है ना, ये 3 है, इस टेस्ट वाइज कॉल्ड 3 सिग्मा का मतलब होता है प्लस। ठीक है, 3 सिग्मा के बाद जो डाटा आ रहा है उसको आप कहें कि यार ये पोटेंशियली वो हो सकता है। इसी तरह 3 सिग्मा पहले से डाटा आ रहा है वो भी क्या हो सकता है, पोटेंशियली आउटलायर हो सकता है। अब इस केस में आपने 95% डाटा आपने निकाल लिया, दिस ऑल इज एक्सेप्टेबल, राइट? Only you need to verify this part and this part. So this is a very quick approach, to be honest, and this is a very quick filter. Drawbacks, most tests are for single attribute. Yes, हाँ ये है कि इस उसमें आप एक ही attributes को लेके analyze कर सकते हैं, एक dimension को analyze कर सकते हैं. In many cases, the data distribution can have many attributes. Sir, exactly, sir. Excuse me, sir. सर हमारे पास अगर डिस्ट्रीब्यूशन ही नॉर्मल नहीं है तो फिर, अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है तो उसके लिए दूसरी टेक्निक्स हैं, क्लस्टरिंग कर लें आप। ठीक है सर। ओके, distance based approach, we need multi-dimension analysis without knowing the data distribution. Okay, अब इस केस में distance based outlier हो सकता है, and an object is an outlier if it doesn't have enough neighbors. ये भी एक इसका वो है, आपने प्लॉट किया, एक पॉइंट ऐसा है उसके कोई नेबर ही नहीं बन रहे सराउंडिंग में, समथिंग सस्पिशियस, मीन उसके फीचर यूनिकली डिफरेंट है। ओके, नेबर्स आर डिफाइंड बेस्ड ऑन द डिस्टेंस, वो आपको पता ही है के मीन्स कैसे डिस्टेंस वो कैलकुलेट करता है, इट कीप चेंजिंग सेंट्रॉइड, और फिर वो उसके गिर्द बाउंड्री चेंज होती रहती है। एंड देयर आर डिफरेंट एल्गोरिथम्स फॉर माइनिंग डिस्टेंस बेस्ड आउटलायर्स, इसके लिए भी इवन एल्गोरिथम मौजूद है। फॉर एग्जांपल इंडेक्स बेस्ड, नेस्टेड लूप्स, कॉल सेल बेस्ड एल्गोरिथम, ऑल दीज आर फॉर माइनिंग द डिस्टेंस। ओके, तो हम इतनी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, but you can try if you want, they are available in the literature. Deviation based approach identify outliers by examining the main characteristics of objects in a group. आप ग्रुप में characteristics by characteristics मैच करवाएं और वेरिएशन निकालते जाएं, जहां पर जाके आपकी वेरिएशन थ्रेशोल्ड से अबव हो जाती है, stop there. It means now these points are not coming under this umbrella, they are going outside umbrella, so something is suspicious. Sequential exception techniques simulates the way in which human can distinguish unusual object from among a series of, ये है कि आप कोई ऐसा मॉडल बनाएं जिस तरह ह्यूमन कैप्चर करता है कि दिस इज एबनॉर्मल और दिस इज नॉर्मल, योर एल्गोरिथम स्टार्ट प्रिजर्विंग एंड स्टार्ट कैप्चरिंग इन दिस वे. It's possible. This would be a very intelligent algorithm if it's happen, but it's very difficult. और OLAP data cubes techniques में हमारे पास कुछ particular methods हैं. Click एक method है through which we can detect anomalies or we can detect the outliers in warehouse. Because in this course our focus is not data warehouse, so I will not go in that direction and I will stop here with OLAP. But there is a method. If you want, I can send you the link and you can study by yourself that one. Our focus is normal data set, not the relational or something dimensional or warehouse. Okay, so ये था अब तक
It's all about outlier. Outlier को हम analyze कैसे करते हैं, or what could be the sources from where it can come, okay, and different techniques to determine the outliers. ये हमने पढ़ा. अब हम जा रहे हैं जी, ये खत्म हो गया clustering यहाँ पर with outlier. Now I will reflect back. I want to go towards the semi-supervised learning, but before that I want to recap or reflect where we are now in the big picture. क्योंकि शुरू में मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई थी. Now I want to just revise and remind you what we have covered. तो याद रखें, in this we have covered this part now, all this. Okay? Very simple. Yes. We are going to start soon this now today semi-supervised. ये हम आज कवर करेंगे. इसके बाद आएगी मेटा लर्निंग. ये हम अगले वीक हमारा टारगेट है मेटा लर्निंग कवर करने का. फिर उसके बाद आएगी डीप लर्निंग, ओके, वेयर विल डिस्कस न्यूरल नेटवर्क, CNN, RN, LSTM. दैट्स अवर दिस. और लास्ट थिंग विल गो फॉर reinforcement learning. Correct? This should be very clear to everyone. Yes, sir. ताकि हमें पता चले हम इस कोर्स में कहाँ घूम रहे हैं इस वक्त. So this is the whole course taxonomy. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so then we should go for the semi-supervised. But before going to semi-supervised, I will just give you a couple of slides on the evaluation metrics and machine learning. कितनों को पता है जी क्या, क्योंकि मुझे यकीन होगा आप सबको ये पता नहीं होगा, इसलिए मैंने वो स्लाइड डाल दिया. अदरवाइज आई कुड स्किप. बेसिकली डाटा माइनिंग में बड़ा डिटेल से पढ़ाया जाता है. आई डोंट वांटेड टू इंक्लूड दैट, बट आई वाज थिंकिंग कितनों को पता है जी मशीन लर्निंग की इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं, किस तरह से हम अपने मॉडल्स को इवैल्यूएट करते हैं, ये बताएगा. सर ये तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता है. Yes. Confusion metric is one of the major in this. Confusion metric का कितनों को पता है चलो? अब अगर confusion का भी पता ना हो तो फिर हम कहाँ से start करेंगे ना? That's the problem. और इसके बगैर आप अपनी जो second report कर रहे हैं, part कर रहे हैं, हर एक को ये use करना ही करना होगा. Otherwise there is no way to evaluate the accuracy. Right or wrong? Yes, sir. जिन स्टूडेंट को कंफ्यूजन मैट्रिक्स का ही नहीं पता हो तो वो कैसे इवैल्यूएट करेंगे अपना मॉडल जो भी आप सेकंड पार्ट में अप्लाई कर रहे हैं. तो इसलिए मैंने कुछ स्लाइड उसकी इंक्लूड की हैं. प्लीज लिसन केयरफुली ऑल दो स्टूडेंट्स जो इनको कंफ्यूजन मैट्रिक के बारे में नहीं पता. लिसन दिस एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस. ओके, हम स्टार्ट करते हैं जी यहाँ से. ये एग्जाम्पल बड़ी मशहूर है, वेब पे अगर आप देखेंगे कंफ्यूजन मैट्रिक के अगेंस्ट आपको ये बड़ी कॉमन मिलेगी, क्योंकि दिस इज एक्चुअली वेरी इजी टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड. कंफ्यूजन मैट्रिक्स में एक एक्चुअल वैल्यूज होती हैं, एक प्रेडिक्टेड वैल्यूज होती हैं. ओके, एक्चुअल वैल्यूज के एक्चुअल डाटा है क्या, जिसके दो इसको हम ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में होती हैं, एक्चुअल वैल्यू होती हैं. जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में होती हैं, याद रखना. इसीलिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स में हम हमेशा यूज करते हैं वर्ड ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव. क्योंकि एक तरफ से हम इसको उठा रहे होते हैं एक्चुअल डाटा को, इज ट्रू और फॉल्स, एक तरफ से हम प्रिडिक्टेड वैल्यू को ले रहे होते हैं, इज फॉल्स और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, सॉरी. ओके, तो सबसे पहला जो कंफ्यूजन मैट्रिक है उसमें बनते भी ये 4 सेल हैं. तो ये आपकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स है. दिस इज योर कंफ्यूजन मैट्रिक्स. इसके 4 सेल डिवाइड होते हैं यहाँ पर. दिस फर्स्ट इज कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव. एग्जाम्पल दी गई यहाँ प्रेगनेंसी की. ओके, प्रेग्नेंट वीमेन. इफ वीमेन, पहली कंडीशन है, इफ देयर इज अ वीमेन एंड शी इज अ प्रेग्नेंट एंड यू predicted this as a pregnant, it means
ट्रू पॉजिटिव, आपने सही प्रिडिक्ट किया। सेकंड चीज जो डेंजरस होती है इसमें, आपके एल्गोरिथम ने उसको पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया जबकि वो नेचर वाइज डाटा ही वो हो ही नहीं सकता। मसलन दैट इज एक्चुअली फॉल्स इन एक्चुअल डाटा। ओके, तो आपने इसको फॉल्स पॉजिटिव कहेंगे हम। आपने प्रिडिक्ट किया बट रॉन्ग प्रिडिक्ट किया, और इसको हम टाइप 1 एरर भी कहते हैं, याद रखिए। टाइप 1 एरर इज मोर डेंजरस देन टाइप 2 एरर, क्योंकि आपके एल्गोरिथम ने एक ऐसी चीज को पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया है जो उस क्लास में ही नहीं है। मैन इज इन 0 क्लास, नॉट इन 1 क्लास इवन, so your model is still predicting positive this data point which lies in other class. आपको समझ आ रही है बातें? Try to understand. Yes sir. I'm trying my best to clarify this. This one is, yes, this data point belong to the same class, okay, and your model is predicting negatively that a woman is not pregnant while actually she is pregnant, because actually this is a true. 0 is false, 1 is true. So you again predicted wrong, but at least within the same class your prediction is incorrect. And the last point is, if it's false and you also predicted negative, it's a false negative, mean you predicted correct. तो बेसिकली जो एक्यूरेसी होती है वो इन दो की होती है, कितने आपने ट्रू पॉजिटिव किए हैं और कितने आपने फॉल्स नेगेटिव ट्रू नेगेटिव किए हैं। सॉरी, एक्यूरेसी हो गई। दिस इज एक्यूरेसी। मुझे बताएं जी किसको ये समझ नहीं आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना आपका ये आपका होता है फॉल्स पॉजिटिव, ओके, और फॉल्स नेगेटिव, ये आपके एरर होते हैं प्रेडिक्शन में। यहां आ जाए, ये उसी को रिफ्लेक्ट किया मैंने पिछली स्लाइड को इन मोर क्लियर वे। तो ये वो बना दिया मैंने, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव। ओके, ये आपकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। अब हर सेल को मैंने आपके लिए दोबारा यह एक्सप्लेन कर दिया है। यू प्रिडिक्टेड पॉजिटिव एंड इट्स ट्रू, ओके, your algorithm predicted it's positive and it is true. It's correct prediction, that is called true positive. Here you predicted positive and it's false. आपने इसको अभी भी पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया बट एक्चुअली ये डाटा ही किसी और क्लास का था, इट इज फॉल्स। सो दैट इज मीन योर प्रिडिक्शन वाज फॉल्स। So false positive. Yes. सर, इसको अगर ना आप कोविड के केस में रिप्रेजेंट करें तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि एक शख्स का कोविड टेस्ट हम करवाते हैं, वो पॉजिटिव आता है, तो उस कंटेक्स्ट में अगर समझा दे तो। यार अब मैं उस ये जो पिछला मैंने एग्जांपल दी उससे तो आप वो भी जनरेट कर सकते हैं, इट्स नॉट प्रॉब्लम। आपने कोविड का टेस्ट किया, ठीक है, कोविड में तो टाइप 1 एरर नहीं है जी, कोविड के केस में टाइप 1 एरर नहीं है। आवाज बहुत स्लो आपकी। आवाज स्लो सर, मैं ये कह रहा हूँ कोविड के केस में टाइप 1 एरर नहीं आएगा। हाँ, अब ये कोविड के केस में ये लेट्स सपोज मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपके यू आर द कोविड पेशेंट, इफेक्ट इज यू टेस्टेड और उन्होंने टेस्ट पॉजिटिव ही आया आपका, इट्स अ ट्रू प्रेडिक्शन, इट्स अ पॉजिटिव प्रेडिक्शन। दूसरा केस है, मैं पहले एक्यूरेसी को डिस्कस कर लूँ। आपको कोविड नहीं था, टेस्ट किया और टेस्ट भी नेगेटिव आया, इट्स अ ट्रू नेगेटिव, इट मींस आपकी जो टेस्ट हुआ है वो सही हुआ है। तो दोनों केसेस में टेस्ट इज अ करेक्ट। कोविड था,
टेस्ट में भी पॉजिटिव आया, ठीक है। खैर मैं अब ये कह रहा हूँ कि अब ये आप इस तरफ न ले जाएं कि अच्छा मैं टेस्ट करना और प्रिडिक्ट करने में फर्क है। ये कहानी सारी प्रिडिक्शंस के ऊपर हो रही है, ठीक है। टेस्ट के तो आपने रिजल्ट दे दिया, मैं अब लेकिन अगर आप यूज्यूम ये करेंगे जो टेस्ट का रिजल्ट है वो मॉडल की प्रिडिक्शन है, अगर आप ये समझे तो। ओके, डू यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, एक है टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट आना, ये और चीज है। एक आप सारे इस्लामाबाद के डाटा सेट्स को, जितने भी टेस्ट हुए हैं उनको डाटा सेट कलेक्ट करें, फिर मॉडल को ट्रेन करें, फिर फीचर निकालें, उसकी प्रिडिक्शन वो कुछ और रिजल्ट होंगे। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रिडिक्शन, आई कैन टेल यू। तो मॉडल ने प्रिडिक्ट किया था कि इस बंदे को कोविड है और उसको वाकई टेस्ट के बाद कोविड ही हुआ, तो दैट इज अ ट्रू प्रिडिक्शन। मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि इस पर्सन को कोविड नहीं है और टेस्ट ने भी उसको नेगेटिव ही प्रूव किया, तो दैट इज अगेन ट्रू नेगेटिव, मीन मॉडल इज करेक्ट। आपके मॉडल ने इसको, एक पर्सन है उसको कहा कि कोविड है, बट प्रिडिक्ट किया कोविड है लेकिन एक्चुअल नहीं था उसको, तो ये वो बनता है फॉल्स पॉजिटिव, ये वाला टाइप 1 एरर, ठीक है। दूसरा है कि एक पर्सन है उसको कोविड था, आपके मॉडल ने कहा नहीं है, ये टाइप 2 एरर है, फॉल्स नेगेटिव। इज इट क्लियर नाउ? आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट कोविड एग्जांपल नाउ। यस सर, यस सर। ठीक है, तो हाँ अगेन ये प्रिडिक्शन है, टेस्ट तो आप दे ही रहे हैं, वो तो टेस्ट तो आपका ग्राउंड ट्रूथ है, बल्कि इस केस में जो आप टेस्ट देने के बाद जो रिजल्ट आया दैट इज अ ग्राउंड ट्रूथ। यू विल यूज दिस टू वैलिडेट योर प्रिडिक्शन कि मैंने क्या प्रिडिक्ट किया था और रिजल्ट क्या आया है, ठीक है। दैट विल बी अ ग्राउंड ट्रूथ इन दिस केस। ओके, सो ये स्लाइड भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। यू प्रिडिक्टेड पॉजिटिव एंड इट इज अ ट्रू, तो इट्स अ विन विन, आपका मॉडल सही है। You predicted negative and it was true, again you win. But you predicted positive but actually it was not positive, it was false, ठीक है। मैं एक्चुअल के लिए हमेशा एक्चुअल डाटा के लिए फॉल्स का वर्ड यूज करता हूँ और प्रेडिक्शन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड यूज करता हूँ, तो इट्स एरर। ओके, यू प्रेडिक्टेड नेगेटिव एंड इट वाज फॉल्स, तो अगेन दिस इज एरर। लेकिन इसके अंदर पीछे कहानी और भी है कि जरूरी नहीं है कि इन दोनों एरर को मिला रहे और सारा एरर आ जाएगा, ये भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसके आगे बहुत टर्में हैं इवैल्यूएशन के लिए, इट्स नॉट सिंपल। हाँ, हम यूज ये करते हैं कि एक्यूरेसी के लिए हम इन दोनों का सम लेते हैं, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय होल सैंपल साइज, दिस इज योर एक्यूरेसी। इसमें कोई वो नहीं है डाउट, that's very simple. How many of you now got this accuracy formula, and how many of you are clear about this confusion metric? Clear Sir, sir. Yes sir, clear. Clear sir. Okay, so now उसी को मैंने यहाँ लिया है, हैंड रिटन एग्जाम्पल है। अब यहाँ मैंने फॉर्मूले समझाने आपको, इसलिए मैंने इसको शेड कर दिया डिफरेंट कलर्स के साथ। सो दिस इज अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स, yes, this is your confusion matrix, true positive, false positive, false negative, true negative, ठीक है। एक्यूरेसी तो मैंने आपको सिंपल बता दिया क्या है जी, ये ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय टोटल सैंपल साइज, ये आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी। हमें इसमें दो चीजें, अब ये एक्यूरेसी के अंदर फर्दर डेप्थ में मैं जा रहा हूँ, दो और चीजें हमें फाइंड करने की जरूरत होती है। One is called precision, other is called recall. Before I explain, I want to ask why we need it and what it is. Precision and recall. What is that? सर अगर हमें किसी एक क्लास की मतलब एक्यूरेसी मालूम करनी हो तो फिर हम मजीद इसको प्रिसीजन और रिकॉल से मेजर करते हैं। सर हमने एक चीज की एक्यूरेसी मालूम की है तो प्रिसीजन से हमें पता चलेगा कि कितने % जो है ना हमने उसे एक्यूरेट मेजर किया। यस, और रिकॉल फार्मूले पे आपके सामने लिखे हुए हैं, डायग्राम में भी बताया गया है। तो कि सारे पॉजिटिव के डेटा से हमने कितने करेक्ट पॉजिटिव हमने किया है। यस, प्रिसीजन से मुराद ये है
कि आपके मॉडल ने जो सारे के सारे पॉजिटिव प्रिडिक्ट किए, ओके, आपके मॉडल ने जो सारे पॉजिटिव प्रिडिक्ट किए हैं उनमें से ठीक कितने हैं? तो सिंपल, दैट इज कॉल्ड प्रेसिजन। गॉट इट? रिकॉल ये है कि डाटा के अंदर एक्चुअली जितने पॉजिटिव थे, आपका एल्गोरिथम उनमें से कितने पिक कर सका है। दैट इज रिकॉल। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टू। लिसन वेरी केयरफुली। प्रेसिजन का मतलब है कि आपके मॉडल ने जितने टोटल प्रिडिक्ट किए हैं, पॉजिटिव प्रिडिक्ट किए हैं, उनमें से करेक्ट कितने हैं। ओके, करेक्शन की रेशो क्या है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिजन। रिकॉल ये है कि आप एक्चुअल डाटा में टोटल जितने पॉजिटिव थे, आपका मॉडल उनमें से कितने करेक्टली पिक कर सका है, दैट इज कॉल्ड रिकॉल। इज इट क्लियर? यस सर। फिर सर हम रिपीट कर देंगे दोबारा। प्रेसिजन ये है कि आपके मॉडल ने टोटल, ये देखें, इसको याद रखें, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये है आपकी पॉजिटिव प्रेडिक्शन, आपके मॉडल की पॉजिटिव प्रेडिक्शन। ये जो लाइन है आपके मॉडल की नेगेटिव प्रेडिक्शन को शो करती है। ये जो लाइन है पूरी, ये एक्चुअल पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव, और ये एक्चुअल नेगेटिव। डाटा में एक्चुअली कितने पॉजिटिव कितने, इसलिए रिकॉल जो है वो एक्चुअल डाटा के ऊपर अप्लाई होता है, प्रेसिजन आपकी प्रेडिक्शन पे अप्लाई होता है। प्रेडिक्शन में हम ये कहते हैं कि आपके मॉडल ने अगर 100 इंस्टेंस थे, उनमें से 70 पॉजिटिव प्रेडिक्ट किए, 70 में से करेक्ट कितने हैं, दैट इज प्रेसिजन। ठीक है, मसलन अब 70 आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किए, उनमें से करेक्ट कितने हैं, ये प्रेसिजन है। जबकि रिकॉल क्या है, एक्चुअल डाटा में 70 नहीं थे, 80 थे पॉजिटिव। 80 में से कितने पिक कर सके आपका मॉडल, दैट इज रिकॉल। 70। जहां 70 किए हैं तो दैट इज अ रिकॉल। तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, और ये आपकी इसमें इवैल्यूएशन में दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जब आप प्रेसिजन और रिकॉल के ऊपर ये F1 F मेजर कहते हैं, इसका फार्मूला लेते हो, तो ये आपको रेट बताता है कि डाटा, आप अपनी एक्यूरेसी से खुश ना हो, F1 कितना निकला आपका। ठीक है, अगर मैं आगे जाके आपको प्रूव भी करके दूंगा कि आपकी एक्यूरेसी बहुत ही हाई आ रही होगी, बट एक्चुअली दिस इज नॉट अ वेरी हाई एक्यूरेसी, वो आपको F1 बताता है। क्योंकि पर इसमें दो एंगल है F1 में, प्रेसिजन है और रिकॉल है। प्रेसिजन आपकी प्रेडिक्शन को पिक करता है, वो रिकॉल वो ट्रू एक्चुअल डाटा में कितनी पॉजिटिव है उसको पिक करता है। तो इन दोनों का फार्मूला ये डिजाइंड है, इसकी बेस पे F1 निकलता है। ओके, आई होप के इट शुड बी क्लियर नाउ टू ऑल। तो जी सर। बिफोर आई मूव टू सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, यहां तक मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था कि आगे जो भी मॉडल होंगे आपको पता होना चाहिए एक्यूरेसी कंफ्यूजन मैट्रिक है क्या। आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस अगेन एंड अगेन, और ये डेफिनेटली ये बड़ा बेसिक होता है, डाटा माइनिंग में ये पढ़ाया जाता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो ये हर स्टूडेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, इसके आगे और भी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हैं, इट्स नॉट ओनली दिस इज द एंड। टाइम सीरीज डाटा की और तरह की इवैल्यूएशंस हैं, ठीक है, रूट मीन स्क्वेयर्स हैं, वो हम निकालते हैं, एसवीएम में निकाल के चेक करते हैं। तो डिफरेंट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हैं हर मॉडल की, बट all these evaluation metrics, their help is very easily available on internet. You can see and you can look at this, but confusion metric हर एक में अप्लाई होती है, इसलिए मैंने ये आपको पढ़ाया है थोड़ा सा। अब चलते हैं सेमी सुपरवाइज लर्निंग। यहाँ तक कोई किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या है? It's self-descriptive. It's very clear from the name. मीन के कुछ डाटा सुपरवाइज्ड है और कुछ अनसुपरवाइज्ड है। ओके,
mostly more data is unlabeled, few data sets are or data instances are labeled. होता इसमें ये है, मैंने आपको ये बना के दिखाया. This part of data set is only labeled while a big part is unlabeled. इस तरह के डाटा सेट को हम कैसे वो करें? Definitely still better than unsupervised, completely unsupervised. लेकिन अगर ये सिनारियो हो तो what can we do? So in this case we need to use semi-supervised learning or SSL. Suitable when just a small portion of the training data is labeled. These algorithms try to learn also from the unlabeled. हाँ, असल जिसमें क्रक्स है वो ये है, उस स्मॉल डाटा की बेस पे अनलेबल्ड डाटा को लर्न करना, दैट इज अ सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग. ओके? यस सर. Suitable for data set with small amounts of labeled data, large amounts of unlabeled data. Labeling always required effort. याद रखिएगा, labeling is not easy. So gifted कि अगर आपको labeled data मिल जाए. High certainty in labels. Okay? Labeling, there is a chance of error in this. ये बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन है इसकी. When you are here, it's completely unsupervised, no labeling. As you move up, you start getting some labels. Here 100% label, mean supervised, fully supervised. Okay? इसी तरह ये सर्टेनिटी है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे लेबल है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पर क्वाइट अनसर्टेनिटी, हाई अनसर्टेनिटी. As you move further, you will get more and more certainty in your data, and here is 100% certainty, क्योंकि आपके पास डाटा लेबल आ चुका है. इसके अंदर ये जो सारा समंदर है, ये दिस इज पार्शियली सुपरवाइज्ड, जहां पर कुछ सुपरवाइज, कुछ लेबल है, कुछ नॉट लेबल है, कुछ. द मोर अप यू विल गो, यहां पर आपको सारा ही अनसुपरवाइज मिलेगा, बीच में जाके आपको पार्शियली सुपरवाइज मिलेगा विच इज सेमी सुपरवाइज. एंड वंस यू क्रॉस दिस ओशन एंड यू आर गोइंग टिल दिस साइड, गोइंग टुवर्ड्स अप, ज्यादा लेबल्ड होता जाएगा, कम अनलेबल होगा. वंस यू रीच ऑन दिस रेड स्पॉट, will get fully supervised, right? Yes sir. Yes sir. तो ये है जी ओवरऑल पिक्चर आपके डाटा सेट के क्या हो सकता है, सेमी सुपरवाइज, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज. सर एक क्वेश्चन है मेरा सर. जी सर, जिस तरह हम ये देख रहे हैं, आवाज आपकी बहुत डीम है, मुझे समझ नहीं आता. जी सर, अब मेरी आवाज क्लियर है सर? आप बोलें जी. हाँ जी सर, जिस तरह अभी आपने ये डिस्क्राइब किया सेमी सुपरवाइज लर्निंग को और सेमी सुपरवाइज डेटा को, तो सर आपको ये नहीं लगता कि इन एक्चुअल जो हमारे पास मौजूदगी है सेमी सुपरवाइज डेटा की, वो ज्यादा है बनिस्बत सुपरवाइज और अनसुपरवाइज के? मतलब हमें नॉर्मली कुछ चीजों के बारे में पता होता है और कुछ नहीं, तो हमें हमारे मतलब डेली रूटीन के अंदर या जिस तरह हम रिसर्च करते हैं कुछ भी, तो ज्यादातर फोकस जो होता है वो सुपरवाइज मशीन लर्निंग पर या थोड़ा सा अनसुपरवाइज पे होता है. आपको नहीं लगता कि सेमी सुपरवाइज के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. मैं तो ये कहूंगा हमारे सिनेरियो में तो यार क्यों सा ज्यादा डाटा सेट मिलता है ना हमें, वो हमें अनसुपरवाइज मिलता है मोस्टली. लेबल डाटा बड़ा कम होता है जो मिलता है. मसलन किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपको प्रॉपर डाटा मिल रहा है, वो तो लेबल हो सकता है. अब सोशल डाटा सारे का सारा नॉन लेबल मिलता है, ठीक है. अब ट्विटर डाटा है, इसमें से मैं कोई भी फीचर निकालूं, कुछ निकाल, कहाँ है लेबल? लेबल नहीं है. सोशल डाटा इज नॉट लेबल्ड, ठीक है. हाँ, कुछ आपको अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉपर डाटा मिल रहा है,
वो लेबल हो सकता है। बट आई एग्री विद यू कि सेमी सुपरवाइज है, कुछ डाटा लेबल हो सकता है और बहुत सारा नहीं है, ठीक है। तो उस केस में सेमी सुपरवाइज इज इक्वली इम्पोर्टेंट। हमें यानी कि जो लोग कहते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, हम से रॉन्ग, सेमी सुपरवाइज इज इक्वली इम्पोर्टेंट। और आपके पास कुछ डाटा सेट है जो लेबल्ड है, बाकी आपके पास नहीं है, उसकी बेस पे आप बाकी को कैसे लेबल करें, दिस इज अ चैलेंज। यस लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन दिस। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कुछ मेथड हैं इसके जो हम करते हैं, बट स्टिल वी आर नॉट अचीविंग द एक्यूरेसी अप टू दैट मार्क कि हम कैसे शोर करें। एक है कि लेबल डाटा 100% ग्राउंड ट्रूथ डाटा है, उसके साथ कभी कंपेयर नहीं कर सकते हम। हियर ये हम जो लेबल करेंगे भी वो हम मॉडल से करेंगे, मॉडल की तो एक एक्यूरेसी का लेवल होता है। यस सर बट द डाटा सेट दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन और उन्होंने खुद उसको 100% टिक किया हुआ है, उसके साथ तो कभी मैचिंग नहीं होती। लेकिन वो केसेस मैं आपको बताऊं वो बहुत कम है, वो केसेस कम है। यस सर ओके सर अब थैंक यू ऑडियो सर फाइल्स को लेबल करना काफी टफ होता है। बिल्कुल हाँ, ये एग्जैक्टली इट्स रियली डिफिकल्ट। अब ये मैं बताऊं, आपने यही से पिक कर लें, आपको ये जो क्या कहते हैं हम, थ्रेट वीडियोस होती हैं यार, क्या कहते हैं उनको, फेक वीडियो, नो नॉट फेक, स्पैम नॉट स्पैम यार, हेट स्पीच, हाँ हेट स्पीचेस, यस हेट स्पीचेस वीडियोस आपकी होती हैं। आप कहीं वीडियो पे थोड़ी कहीं लेबल लगा होता है कि ये हेट स्पीच है, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर आप जब फ्रेम बाय फ्रेम वीडियो को एनालाइज कर रहे हैं तो आपने उस फ्रेम पे जाके खुद ही लेबल करना है ना कि ये सीन था जो हेट स्पीच को इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये वो फीचर था जो नॉमिनेट कर रहा है कि दिस वीडियो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हेट स्पीच। यस, तो ये सारा वीडियो डेटा मोस्टली अनलेबल्ड ही है एग्जैक्टली। लेकिन आप उसके फीचर्स की बेस पे डिसाइड करते हो, फीचर्स नोन है, फीचर पे लोगों ने काम किया है और एक बेंचमार्क आपको मिलते हैं कि हाँ हेट स्पीच डाटा के ये फीचर्स हैं जिनकी बेस पे लोगों ने इतनी एक्यूरेसी अचीव की है। यू कैन यूज दोज फीचर, अदर यू इन्वेंट योर फीचर्स। ये है, ये हेल्प है। सर स्पेशली अब आजकल जो अब्यूसिव वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं वो सेंसर कर दिए जाते हैं, उनका भी कुछ एल्गोरिथम होगा इस तरह का? नहीं, उसका है अभी तो ये हो रहा है कि यार मसलन YouTube, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल नहीं है पूरा, YouTube हैज अ कंट्रोल ऑफ ऑल हिज वीडियोस, इस तरह Facebook हैज कंट्रोल ऑल हिज कंटेंट्स, हमारे पास वो कंट्रोल नहीं है। असल ये होता ही है कि जब व्हेन यू अपलोड द न्यू वीडियो ऑन YouTube नाउ, अब वो अपना एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। तो वो उसकी कंटेंट्स को एनालाइज करके YouTube को रिकमेंड करते हैं, इट्स अ रिकमेंडर सिस्टम कि इस वीडियो के अंदर हेट स्पीच का लेवल क्या है, इस वीडियो के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन है या कोई ऐसे कुछ भी है, तो वो अलर्ट करता है पहले। तो अगर वो अलर्ट जनरेट होता है तो YouTube हैज अ फुल राइट कि वो उसको इग्नोर कर दे। आप कुछ कर तो नहीं सकते, YouTube का नहीं अपलोड करेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली मॉडल बन चुके हैं ऐसे, these are the some algorithms are there, but these are the big players and they are utilizing। अब मैं आपको बताऊं, अब हम लेट्स सपोज कोई हेट न्यूज हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इट्स नॉट इशू, बट प्रॉब्लम ये है कि आप कब करोगे। कोई अखबार वाला आपको अपना प्री प्रिंट वर्जन दे तो कर सकते हैं ना, एंड देन इट्स यूजफुल, अदरवाइज उसका यूज कोई नहीं है, ऐसा है कि नहीं। यस सर, ये डेटा अगर आपका किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, आपने मॉडल तो बना लिया है, बट टू टेस्ट एंड यूटिलाइज दिस मॉडल एंड इन द रियल प्लेस, आपका जंग अखबार वालों के साथ मुआहदा हो जाता है कि यस, आपका जो भी स्क्रिप्ट प्री प्रिंट है वो आप हमें दें, हम उसको एज ए इनपुट मॉडल को देंगे, मॉडल आपको बताएगा इसमें कौन कौन सी न्यूज हैं जो इट कैन बी ऑन रिस्क और समथिंग रिलेटेड टू हेट स्पीच, ठीक, हेट न्यूज। तो वो मटेरियल वो स्टेट अवे निकाल सकते हैं, या एटलीस्ट आप उनको हाईलाइट तो करके तो दे सकते हैं ना, देन इट्स ऑन योर चॉइस, ऑन देयर चॉइस। तो ये सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं हमारे यहाँ, तो न्यूज का आई डोंट नो यहाँ है कि नहीं, लेकिन ये चीज बना हुआ है। अब FIA जो हमारे वो करते हैं, ट्वीट्स को रिमूव कर देते हैं ट्विटर से, ये करवाते हैं जो भी करते हैं, तो दे हैव अथॉरिटी फॉर डूइंग दिस। ओके, जी सर। तो ये बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, इन पे काम मैंने थोड़ा बहुत किया भी है। अब लेकिन इशू यही है कि इनका जो प्रॉब्लम आता है वो डिप्लॉयमेंट पे आता है।
डिप्लॉयमेंट आप इसकी नहीं कर सकते जब तक आपकी किसी कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट ना हो, क्योंकि इसमें आपको रियल टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए प्री लोड वीडियो चाहिए और प्री प्रिंट टेक्स्ट चाहिए। आपने अखबार में न्यूज आने के बाद उसको प्रिडिक्ट किया तो फायदा क्या है, लोगों ने तो पढ़ ली ना। सर रियल टाइम पे तो ये और डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, रियल टाइम में डिफिकल्ट है, लेकिन ये चीज हो चुकी है भाई, रियल टाइम में हो चुकी है। पर्टिकुलरली जब ये क्राइस्ट चर्च में इंसिडेंट हुआ था ना, यूट्यूब को उसकी वजह से बड़ा डेंट पड़ा है, ठीक है, और वो फेसबुक पे अपलोड हुई थी। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने उसका बहुत अच्छा खासा स्टैंड लिया था, वो उतर गई थी उसी दिन, लेकिन इतना टाइम भी क्यों लगा? यस सर, वो भी लाइव थी। हाँ, वो लाइव थी, वो असल में वो यही थी ना, वो लाइव थी, और उस वक्त तक उन्होंने कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया था कि लाइव को भी वो एनालाइज करके आगे अलाउ करे। तो उसके ऊपर जब गवर्नमेंट, जाहिर है कंट्री लेवल पे प्रेशर आता है, तो देन थिंग्स विल चेंज। तो अभी उन्होंने देखा कि वो चीज हुआ। अभी भी कोई पिछले दिनों मैं न्यूज पढ़ रहा था, फेसबुक को बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ है, मुझे नहीं पता क्या, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, समथिंग हैपेंड सर रॉन्ग। रेटिंग ड्रॉप हुई है। हाँ हाँ, रेटिंग ड्रॉप हुई, रेटिंग्स भी drop वो हो गई। किस कुछ हुआ है उसमें, व्हाई दिस रेटिंग गॉट ड्रॉप? सर वो पहले से की वजह से ना हाँ सर लोगों ने उन्हें रेटिंग ना गिरा दी। सर पेज इसराइल लाइक का करवाए कंटेंट हैं। ज्यादा वो करा रहे थे। हाँ, तो कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है अभी भी। तो इस तरह ये चीजें होती हैं। डेफिनेटली विद पैसेज ऑफ टाइम दे लर्न एंड देन दे बिल्ड। अभी इसका कोई ना कोई इसका कंपोनेंट बिल्ड कर देंगे इसके अंदर। बट एनीवे दीज थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग टू रिसर्च। हाँ, उसके लिए हम ये कर सकते हैं, आप मतलब कोई इस पे प्रोजेक्ट करना चाहता है, हैप्पी, उसके लिए हम एक डाटा सेट अपने तौर पे सिंथेटिक डाटा जनरेट करके उसको टेस्ट करके बता दें कि देखो, अगर हम इसको एज ए प्री प्रिंट वर्जन कंसिडर करते तो हमारा मॉडल इतनी एक्यूरेटली इसको एज ए हेट स्पीच के तौर पे आइडेंटिफाई कर रहा है। दैट वी कैन डू, और ये एक्सेप्टेबल है एकेडमिक्स के अंदर। यू कैन पब्लिश पेपर ऑन दिस बिकॉज पीपल इन एकेडमिया सर एक और मॉडल भी तो हो सकता है, बीइंग बायस्ड। अगर मैं किसी फेसबुक इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, एक कंट्री को, उसका ज्यादा कंटेंट डाल रहा है। कहाँ पर? सर जिस तरह से अभी इन्होंने कराया कि पेज बना के इन्होंने ऑटोमेटिकली लोगों के लाइक्स दिलवा दिए उस पर। हाँ, वो तो डेफिनेटली उन्होंने उसको आर्टिफिशियली उसके रेटिंग की है ना, आपकी है, ठीक है। हम डेफिनेटली ये हो सकता है, लेकिन हम क्यों करें? अगर हमने ये प्रोजेक्ट करना है अपने मास्टर का, तो वी विल पिक अ फेयर डाटा सेट, ठीक है। हाँ, हम उसमें ऐसा डाटा सेट लेंगे जो डाटा सेट जिसके अंदर वो 8 न्यूज के कंपोनेंट्स भी हों, और दैट्स व्हाई वी वांट टू इवैल्यूएट। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इन केस हमें कोई ओरिजिनल कंपनी के साथ डिप्लॉयमेंट या कोई एग्रीमेंट नहीं भी होता, we can still develop our demo, we can still develop our prototype and we can prepare this। उस केस में फिर ये भी फायदे होते हैं, अगर ये काम आप करें ना, कल को आप यहाँ से डिग्री लेके निकलते हैं, यू कैन प्रेजेंट दिस एज अ डेमो टू एनी न्यूज़पेपर, गुड न्यूज़पेपर, किससे कि यार अगर आप ये चाहते हैं तो हम आपके लिए डिप्लॉय कर सकते हैं, हमने ये बनाया हुआ है और ये टेस्ट किया हुआ है, इफ यू वांट। तो मेरे ख्याल में अच्छे अखबार वाले ठीक ठाक, दे आर वेरी रिच पीपल्स एंड दे कैन इन्वेस्ट इन दिस। एक्सक्यूज मी सर, मेरा सर एक क्वेश्चन है। यस सर आपको नहीं लगता कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर कंपनी की पॉलिसीज और उसके मफादात और जनरल पब्लिक की जो मतलब थिंकिंग प्रोसेस है, जो उनका थॉट प्रोसेस है, जिस तरह की उनकी जहनियत है, वो सब भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है? क्योंकि हमारे यहाँ आप देखिए प्रिंट मीडिया में भी और जो डिजिटल मीडिया है इसके अंदर भी, और अक्सर न्यूज़ चैनल जो हमारा मीडिया है उसके अंदर आप ये नहीं देखते कि मतलब अक्सर जो हेट स्पीच है उसको ज्यादा टीआरपी और रेटिंग मिल रही होती है। तो वो फिर इस तरह के प्रोजेक्ट को क्यों मतलब एक्सेप्ट करेंगे कि जबकि वो चाहते यही है कि इस चीज को फरोग मिले? ठीक है, आई एग्री, चले वो नहीं करेंगे। वैसे आपकी बात किसी हद तक आई एग्री से कि हमारे जो इंडिविजुअल चैनल्स हैं वो तो चाहते हैं कि हमारे हाथ कोई ऐसी खबर लगे या कोई ऐसी हो, चाहे वो हेट हो या फेक हो, कुछ भी हो, हमारे ग्राफ ऊपर जाने चाहिए। वी डू दिस, आई नो। एक्चुअली उसकी एक रीजन है, मीडिया हमें बहुत ज्यादा आजाद किया हुआ है, कंट्री की कोई पॉलिसी नहीं है इसके ऊपर। अगर कंट्री की पॉलिसी हो, मीडिया बाहर भी है, ओके, दे कैन नॉट डू दिस। यस सर, सेम ठीक है, पॉलिसी। हाँ, तो अब उसमें तो मेरा और आपका कोई अमल दखल है ही नहीं है ना, हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन आप चले उनको टारगेट ना करें, अगर आप ये काम कर लेते हैं, व्हाई डोंट यू टारगेट गवर्नमेंट?
कि गवर्नमेंट उनको इन्फोर्स करे कि भाई हर एक ये मॉडल अप्लाई करे, डिप्लॉय करे, और कोई भी न्यूज आप देने से पहले इसमें से गुजारे। ये तो हो सकता है कि नहीं? यस सर। तो बिल्कुल हो सकता है। स्टिल इट्स यूजफुल, और ये तो और बड़े लेवल पे होगा, लार्ज स्केल पे होगा। अब आप एक एक न्यूज चैनल के पीछे नहीं फिरेंगे, यू कैन प्रेजेंट दिस टू गवर्नमेंट, एंड इफ गवर्नमेंट्स आर इंटरेस्टिंग कि वो किसी भी पार्टी के खिलाफ जब चाहे वो करें, या फेक न्यूज आती है, अगर हम इनको इस चीज का अलर्ट जारी कर सकते हैं, और वो एक अच्छी चीज होगी, हम अलर्ट गवर्नमेंट को भी साथ भेज सकते हैं कि हमने किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बाईपास किया इसको। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो अगेन हम थोड़े से दूर चले गए, कम बैक टू दिस सेमी सुपरवाइज। अब क्वेश्चन ये है कि हम इस डाटा को कैसे फिल करें। ठीक है, ट्रेडिशनल सुपरवाइज लर्निंग इज लिमिटेड टू यूजिंग अनलेबल्ड डेटा। SSL also uses unlabeled data to learn। हम इसमें सेमी सुपरवाइज के अंदर जो असल गेम है वो है यही कि किस तरह से हम अनलेबल्ड डाटा से लर्न करें। ट्रेडिशनली लर्निंग ज्यादा सुपरवाइज से होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपको लेबल पता होता है, तो मॉडल उसके रूल बनाता रहता है। डिसीजन ट्री में हम बड़े अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं अभी। लेकिन लर्निंग अनसुपरवाइज से भी होती है, ऐसे नहीं है। अब आपका के मीन्स भी तो कुछ ना कुछ करता ही है ना, जो क्लस्टरिंग कर रहा होता है तो कुछ ना कुछ तो लर्निंग होती है, तो क्लस्टरिंग करता है वो। लेट XY बी ए लेबल्ड इंस्टेंस। अब हम कैसे मिक्स करते हैं जिनको, XY बी ए लेबल इंस्टेंस एंड XY बी एन अनलेबल इंस्टेंस, क्योंकि मिक्स डाटा आएगा ना, कुछ लेबल आएगा कुछ नॉन लेबल आएगा। तो इससे क्या होगा, L सबरू कैपिटल L ए सेट ऑफ n लेबल इंस्टेंसेस, ये सारे n इंस्टेंसेस आ गए जो लेबल हैं। U आ गए सेट ऑफ m अनलेबल इंस्टेंस, m इंस्टेंस आ गए जो अनलेबल है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि यूजुअली लेबल बहुत कम होता है, अनलेबल बहुत ज्यादा होता है, तो मैंने लिखा है n इज स्मॉल लेस फार लेस देन m। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो SSL tries to use किस तरह से L यूनियन U करें, दोनों को मिक्स करें, और जो लेबल्ड है उससे लर्न करके U को लेबल करने की कोशिश करें। दैट इज सेमी सुपरवाइज। ओके, सिंपल एल्गोरिथम है जिसका सेल्फ लर्निंग ए मॉडल यूजेस द अनलेबल्ड डाटा टू इंप्रूव इटसेल्फ। प्रोसीजर, ट्रेन ए मॉडल F, ये मॉडल है आपका F विद लेबल डाटा। L तो लेबल है ना आपके पास, चाहे थोड़ा ही है। ट्रेन योर मॉडल F विद L। देन जब आप ट्रेन कर लें तो उससे एक फंक्शन आप जनरेट करें, लर्निंग फंक्शन बना सकते हैं कि नहीं? मॉडल जो लर्न कर रहा है उसका एक लर्निंग फंक्शन बनता है ना। जी सर। वो लर्निंग फंक्शन F जो है, अब आप अप्लाई करें यहाँ सिंपल मैथ। अब सिंपल मैथ है, वहां से सिर्फ हमें फंक्शन मिल गया, वी गॉट द लर्निंग फंक्शन। नाउ यू अप्लाई सिंपल मैथ, you do fx and x is the instances of your u which is unlabeled। अब वो फंक्शन कोई वैल्यू आउटपुट देगा ना, which should be very close to your label। वो जितना एक्यूरेट फंक्शन आपने एक्सट्रैक्ट किया होगा उतना एक्यूरेट लेबल आपको देगा वो, एंड दैट वुड बी योर y प्राइम। ठीक है, और y प्राइम जो आपके पास आ गया उसको आप कंबाइन करते हैं लेबल के साथ, ताकि लेबल का चंक बड़ा होता जाएगा और अनलेबल का कम होता जाएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। सर एक क्वेश्चन था सर, अगर हमारे जी बोलें। सर अगर हमारे पास एक डाटा ऐसा आ रहा है उसमें वो लेबल्ड है ही नहीं, उसमें कोई नया उसका फीचर है, तो फिर तो सेमी सुपरवाइज हुआ ही नहीं सर। अनलेबल्ड में तो कुछ भी हो सकता है ना, वो तो कोई और नया फीचर भी हो सकता है। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सारे का सारा डेटा अनलेबल्ड है, क्या है? सर नहीं, हमारे पास कुछ लेबल्ड है डाटा, ठीक है, तो एक अनलेबल्ड डाटा हमारे पास नया आया है, उसमें एक और नया फीचर ऐड हो गया है कोई, ठीक तो है, वो तो ऑलरेडी हमारे पास लेबल में होगा ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली। अगर वो नहीं होगा लेबल में, अगर आपका जो अनलेबल डेटा है वो लेबल से कंप्लीटली डिफरेंट डेटा है, तो फिर तो लेबल हेल्प नहीं करेगा आपको। फिर तो उस पर यही होगा, आप अनलेबल वाला अप्रोच के क्लस्टरिंग लगाएंगे बस।
ठीक ओके सर। ये तो तब आपकी हेल्प करेगा ना, उसका लेबल्ड में वो डाटा हो, लेकिन अब उसके लेबल आपके पास नहीं है, यू वांट टू लेबल इट, देन इट विल हेल्पफुल। अगर आपने लेट्स सपोज एक डाटा है आपका हेल्थ का, चलिए कोविड का ले लें, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, इसके एग्जांपल बेस्ट यहाँ से देता हूँ। एक कोविड का आपके पास डाटा है जो आपको हॉस्पिटल से मिला है, जो टेस्ट करते हैं कोविड का। अब उन्होंने तो आपको बड़ा क्लियर लिखा हुआ है ना, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये कोविड है, ये कोविड नहीं है, कोविड है, ये कोविड, ये तो लेबल डाटा है। अब मैं अगर आपको कहूँ कि यार ये तो लेबल मिल गया, अब आप ट्विटर डाटा डाउनलोड करो, ट्विटर डाटा डाउनलोड करो जिसमें लोगों ने कोविड से रिलेटेड टर्म यूज किए हैं, वो भी एक डाटा आ गया आपके पास, वो तो लेबल नहीं हो सकता, वो क्या होगा, अनलेबल्ड है। ट्वीट्स हैं, बट ये तो नहीं है कि ट्वीट लिखने से मैं कंफर्म है कि मैं आई एम कोविड पॉजिटिव, ठीक है। तो अब इस केस में या तो फिर ये काम करे कि जो आपने हेल्थ वाले ने आपको डाटा दिया लेबल्ड, वो साथ फीचर भी दे इस सिम्टम्स पे वो किया। लेकिन मसला ये कि ये तो टेस्ट है, इसका रिजल्ट सिर्फ इसके फीचर्स बनेंगे नहीं, सिर्फ आपका इनपुट एज ए ब्लड है और टेस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव है। अगर इसके फीचर होते जो इंक्लाइन करते कि ये पॉजिटिव है, और या वो आपको दे दें एज ए हेल्थ कि हमने अपने टेस्ट में ये साथ साथ हमने साथ जब भी कोई पेशेंट आता है, विच इज पॉसिबल अगर हम इतनी एफर्ट करें, जब भी कोई पेशेंट आता है तो हम उससे साथ उसका इंटरव्यू करते हैं छोटा सा, और उससे पूछते हैं आपके सारा कुछ, और फिर हम टैली करते हैं कि यार इस सिम्टम के साथ कितने % पॉजिटिव आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सारे आपके प्रोजेक्ट थीसिस के मैं आपको बताऊं जो मैं डिस्कस करता जा रहा हूं, तो वो हमें देता है वो फीचर्स। फिर हम ये करें कि ट्विटर का डाटा डाउनलोड करें, उनमें वो फीचर देखें, उन फीचर्स की बेस पे उनकी क्लासिफिकेशन करें, ठीक है। आप देखिएगा फिर वो लेबल काफी हद तक मिलेंगे भी हमसे, ठीक है। यस। So this is how we can fill the unlabeled data in semi-supervised. Self-learning improvements just add instance with the most confident predictions. अब इसमें एक ये भी इस तरीकेकार है, सेल्फ लर्निंग कैसे करें हम। आपका जो मॉडल क्लासिफाई कर रहा है, हर क्लासिफिकेशन के साथ मॉडल अपना कॉन्फिडेंस देता है कि मैं इस कॉन्फिडेंस से इस रिकॉर्ड को क्लासिफाई कर रहा हूँ, ठीक। उनमें से जो आपके हाईएस्ट कॉन्फिडेंस वाले रिकॉर्ड हैं वो भी तो आप यूज कर सकते हैं, दे आर ऑलमोस्ट एक्यूरेट क्लासिफाइड, उनको आप प्री नॉलेज यूज करें फॉर सेल्फ लर्निंग, ओके। सो परफॉर्म द प्रोसीजर विद बैचेस। आप हाँ, इस केस में हम एक सिंगल रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि हर रिकॉर्ड का कॉन्फिडेंस चेक करें फिर उसको, तो इसका क्या करें कि 500 रिकॉर्ड जाने दें, फिर उनका कॉन्फिडेंस निकाल लें और फिर उनको अप्लाई कर दें। इफ the classification is meeting your threshold of confidence, then you can use and reassess previous predictions. Problem with SSL. SSL is not always a guaranteed to work. Performance may also degrade due to noisy instance. जैसा मैं आपको बताया था कि अगर ट्विटर में आपको कुछ पता ही ना हो, फीचर ना दिए जाए, फिर नहीं होगा। This will be noisy and you will not, because remember, garbage in, garbage out. मॉडल को आपने कोई वो नहीं दिया, उसको कोई क्लू नहीं मिला लेबल्स की तरफ से, तो डेफिनेटली फिर तो कोई एक्यूरेसी नहीं आएगी, इट विल बी गार्बेज आउट। मल्टी व्यू लर्निंग रह गई है जी, मेरे ख्याल टाइम तो हमारा हो चुका है। तो हमें यहाँ स्टॉप करना है। नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट फ्रॉम मल्टी व्यू लर्निंग। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक मुझे बता दें, मीनवाइल आई कैन टेक द अटेंडेंस। ये क्लियर है सबको आज जो हमने पढ़ा है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके नेक्स्ट। ओके, मोहम्मद फरहान। प्रेजेंट सर। तूबा। यस सर। साद। मोहम्मद काशिफ।
प्रेजेंट सर। साद नहीं है ना? सर प्रेजेंट। तो यार बोल क्यों रहे हैं आप? मोहम्मद उसामा। प्रेजेंट यस सर। पीर समी। समी। इरफान मुल्ला। प्रेजेंट सर। आमना। प्रेजेंट सर। तहमीना। प्रेजेंट सर। सानिया। प्रेजेंट। अब्दुल रहमान। प्रेजेंट सर। मोहम्मद उसामा। प्रेजेंट सर। सैफ। यस सर प्रेजेंट। शाहजेब। प्रेजेंट सर। नासिर। मोहम्मद जुबैर। प्रेजेंट सर। तलहा। यस सर। शबीर। यस सर। उजैर। प्रेजेंट सर। रिदा। प्रेजेंट सर। अनम। प्रेजेंट सर। अदील। प्रेजेंट सर। उमर। प्रेजेंट सर। अब्दुल हन्नान। यस सर। फरजाद। प्रेजेंट सर। जहरा। जहरा। तस्बीहा। यस सर। रेहान। प्रेजेंट सर। नईम। नईम अख्तर। अब्दुल हई। अब्दुल हई। सर अब्दुल हाई अभी थे, वो लेफ्ट कर गए हैं। अली हसनैन। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हारिस। प्रेजेंट सर। वलीद। प्रेजेंट सर। जहाजेब। जहाजेब। आयशा फारूक। प्रेजेंट सर। मोहम्मद शोएब। शोएब। मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर। मोहम्मद इस्माइल। प्रेजेंट सर। कुमैल। प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमर था नहीं? ओके, सो दैट्स ऑल. सर अब्दुल हाई प्रेजेंट। अब्दुल हई प्रेजेंट. अब्दुल हई या सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कॉल नहीं कर पाया सर। ओके, दैट्स फाइन. ठीक है जी, we'll stop here and we'll see you on Friday with presentations. Last 3 presentation I think we have this Friday, और फिर next week we'll see you. Okay जी. थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज.